Good evening, students. Today we'll start with the concept of balance sheet and a format of balance sheet. And if time permits, we'll start points to remember or some important items of trial balance. Okay, so let's start. Now, balance sheet. So first, what do you mean by balance sheet? Balance sheet is a statement which shows the financial position of the business on a particular date. So what is balance sheet? Is a statement which shows what financial position of what business on a particular date. Particular date means normally at the year end. Now, what do I mean final position? Final means what are my assets, what are my liabilities, and what is my capital. Okay. Next, point number 2. Balance sheet is prepared at the end of each accounting year. हर साल, जैसे कि accounting year 1920, accounting year 2021, 21-22, at the end of each accounting year, we prepare a balance sheet. In India, accounting year starts on 1st April and ends on 31st March of the next year. So every year as on 31st March, we prepare balance sheet to know the financial position of the business. That is my what are my assets, what is my liabilities, and what is my capital. Left hand side of balance sheet is my liabilities, and right hand side of balance sheet is statement. So left hand side is my liabilities and right hand side is my assets. It is a statement show, so it does not have debit or credit. बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है. इट इज नॉट एन अकाउंट. अगर अकाउंट होगा तो डेबिट क्रेडिट भी आएगा और टू और बाय भी आएगा. बट बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है. तो देयर विल नो डेबिट नो क्रेडिट. इफ देयर इज नो डेबिट नो क्रेडिट तो बैलेंस शीट में तुमको टू और बाय नहीं लिखना है. Many students write to or buy in balance sheet. It is wrong concept. लिखना नहीं हो, स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं आता. हाँ, of course, every assets has debit balance. Every assets has debit balance, and every liabilities has credit balance. Okay. Next, balance sheet must tally. So when you prepare a final accounts, the balance sheet is our last step. बैलेंस शीट हमारा लास्ट स्टेप है. एंड बैलेंस शीट मस्ट टेल. तो जितना असेट्स होगा उतना ही लायबिलिटीज होगा. मींस जितना हम लोग का कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होगा उतना ही हमारा क्या होगा? असेट्स होगा. कि लायबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल आता है एंड देन लायबिलिटीज, और असेट्स में ओनली असेट्स. देन बैलेंस शीट मस्ट टेल. ओके. नाउ लेट अस लर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. तो फर्स्ट राइट बैलेंस शीट एज ऑन. ओके. ऑफ कोर्स तुमको जब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तुमको लिखना इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या नाम दिया रमेश एंटरप्राइजेस तो नाम लिखो उसका. अगर पार्टनर्स का नाम नहीं, अगर बिजनेस फर्म का नाम नहीं दिया है, देन यू कैन राइट इन द बुक्स ऑफ सोना एंड मोना, इन द बुक्स ऑफ लालू एंड राबड़ी देवी. ओके, लिख सकते हो तुम लोग. ओके. तो बैलेंस शीट एज ऑन, कोई आगे डेट आएगा तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021 वो तुमको लिखना है. ओके. नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. और एक नेक्स्ट पार्ट भी है. ओके, इसका और एक स्लाइड आएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम असेट साइड. ओके, असेट साइड. असेट्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स. दो है, फिक्स असेट्स है और करंट असेट्स. तो पहला है फिक्स असेट्स. Fixed assets are further divided into two parts. First is tangible assets and second is intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen, which can be touched, and we can feel. It is called as tangible assets. Intangible assets are those assets which cannot be seen,
which cannot be touched, only we can feel. Example, goodwill, patents, copyrights, trademark, technical know-how, franchise. These are my intangible assets. And intangible assets means land, building, plant and machinery, furniture, fixture, motor vehicle. तो assets tangible हो या intangible हो, it comes under fixed assets. Sir, fixed means fixed assets are those assets which are purchased for long-term use in the business. Fixed assets are those assets which are purchased in business for long-term use. Long-term means more than 1 year. Next is current assets. Investment बाद में देखेंगे. Current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash within short period, say for 1 year. Current assets एक ऐसी assets हैं जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. This already you have learned in 11th standard. Just I am reminding you कि इसका मीनिंग क्या है. तो करंट असेट्स में क्या आएगा? कैश इन हैंड. तुम्हारे कैश बॉक्स में, बिजनेस के कैश बॉक्स में कितना असेट्स है? कैश एट बैंक, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है, बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उस बैंक में कितना बैलेंस है? ओके, पॉइंट है उस बैंक में कितना बैलेंस है. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग कोई भी स्टॉक हो हमारे लिए क्या है? वो असेट है. Again, today closing stock is an item of adjustment. तुमने पढ़ा 11th में. Today account credit side and balance sheet asset side. तो closing stock is my asset. कोई भी stock हो, stock of stationery, stock of spare parts, stock of advertising material, stock of packing material, कोई भी stock है, is my assets. Next, sundry debtors, debts which are recoverable from customer is called debtors. Yeah, sorry, amount receivable by the businessman from outsiders, yeah, from customers is called as debtors. तो जिससे पैसा लेने का है वो कौन है? डेटर्स है. तो पैसा लेने का हमारे लिए असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड. बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो एन असेट्स. If suppose some of the supplier or some of the customer purchase the goods from us, तो हमने सेल किया, but they don't have money, okay, but they want to purchase the goods. In that case, I will draw bill and write in the bill, okay, 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 10,000 only. Means तो बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है. अगर पैसा नहीं दिया तो ये बिल से हमको पैसे मिल जाएंगे. तो बिल्स रिसीवेबल मींस जो हमने सेल किया है उसके अगेंस्ट हमको पैसा लेना है. ओके, तो बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो आवर असेट्स. नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम लोग बाद में. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पेड इन करंट ईयर. एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पेड इन करंट ईयर is asset for the current year. Balance sheet asset side. Outstanding income, या उसको लेंगे income earned but not received. Income earned, पैसे कमा लिए लेकिन मिला नहीं है. Say for example commission. For commission earned in the month of March. मार्च में मैंने कमीशन कमा लिया लेकिन मिला नहीं है. मार्च का कमीशन कब मिलेगा? अप्रैल मिलेगा. But my balance sheet date is what? 31st March. तो as on 31st March that commission outstanding, तो उसको बोलेंगे commission due but not received. Due but not received हमारे लिए outstanding income है. और due but not paid, due हो गया लेकिन पे नहीं किया है, वो हमारे लिए outstanding expense है. तो याद रखो, commission due या income due but not received ये हमारे लिए asset है. ओके, expense due but not paid ये हमारे लिए expense है. ओके, हमारी लाइबिलिटी है. ओके, एडवांस टू सप्लायर, किसी को एडवांस दिया हुआ है तो हमारे लिए असेट है. तो इफ यू पे, स्टाफ को एडवांस दिया है, सप्लायर को एडवांस दिया है या पीन को एडवांस, किसी को भी एडवांस दिया है, इट इज असेट फॉर अस.
कि एडवांस ही है, बाद में हमको एडवांस क्या करेंगे, हम ले लेंगे या उसको सैलरी में से एडजस्ट कर लेंगे। तो एडवांस टू सप्लायर इज एसेट। अगेन मैंने बताया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। और सर क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे आएगा सर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएगा। ओके नाउ तो ये हम लोग का हो गया सर, क्या हो गया, फिक्स असेट्स हो गया, करंट असेट्स हो गया। ओके मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिक्सेस में, करंट असेट्स में। नाउ अगर फिर भी मेरे पास सरप्लस फंड्स है, मेरे पास और भी फंड्स पड़े हुए, ओके तो उसको काम पे लगाऊंगा। ओके मींस उस फंड्स को मैं कहां ना कहां इन्वेस्ट करूंगा so that I can earn some extra income. Okay, so investment in shares and mutual fund is my investment. If you invest in shares and mutual fund, in return you will get dividend. Okay, dividend income है वो कहाँ पे आएगा, profit and loss account credit side. But when you invest in shares and mutual fund, balance sheet asset side. तो normally तुमको आएगा investment in shares of X limited, तो investment है। ओके ये लेगा डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ये भी क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट है। ओके तो शेयर्स में आएगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिबेंचर्स, इस पे इन्वेस्ट करोगे तो इन रिटर्न यू विल गेट इंटरेस्ट। तो इफ इन्वेस्ट इन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी या कोई कंपनी के डिबेंचर्स को कंपनी डिबेंचर इशू किए, उसमें तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी तुम्हारे लिए क्या इन्वेस्टमेंट है। इसके रिटर्न में तुमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में साथ में लिखा है, बिकॉज इस दोनों पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इन बॉन्ड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स, इसको मैं साथ में लिखा है, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो तुमको मिलेगा डिविडेंड मिलेगा। ओके राइट, तो ये हो गया हम लोग का असेट्स। हाँ, अगर असेट्स पे डेप्रिसिएशन है, ओके तो तुम लोग उसको क्या करोगे, टू लैंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। तो जो जो असेट डेप्रिसिएशन है तुमको माइनस करना है और आउटसाइड में नेट अमाउंट लिखना है। ओके तो कॉस्ट यहाँ ये आएगा, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी मींस रिटर्न डाउन वैल्यू। तो असेट के कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूडीवी। से फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्लांट मशीनरी है, उस पे डेप्रिसिएशन बोला 10%, तो 1 लाख का कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो उसकी नेट वैल्यू इज कॉल्ड एज डब्ल्यूडीवी, मींस रिटर्न डाउन वैल्यू। 1 लाख में से मैं 10,000 वैल्यू रिटर्न कर दी और बचा कितना, 90,000। ओके तो दिस आर माय असेट्स। नाउ लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस। तो नॉर्मली इन फाइनल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट normally has credit balance. If partners current account has credit balance, then balance sheet liability side, और अगर डेट बैलेंस है तो बैलेंस शीट असेट, जो कि हमने दिखा है। नेक्स्ट इज रिजर्व्स इन सरप्लस। रिजर्व्स इन सरप्लस, इफ वी take out or if we transfer some part of profit to for future use is called reserves and surplus. हम हर साल कुछ प्रॉफिट का पार्ट हम साइड में निकाल करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट है और हमको इतना यूज नहीं है, हम क्या करेंगे, एवरी ईयर प्रॉफिट कुछ पार्ट, जैसे से फॉर एग्जांपल 20%, तो 20% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो सिर्फ प्रॉफिट समझो कि 10 लाख है, तो 10 लाख का 20%, तो 2 लाख रुपया हम ट्रांसफर करेंगे जर्नल रिजर्व के अंदर। ओके पॉइंट है, नॉर्मली सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप में ये एडजस्टमेंट दिया नहीं होता है, राइट। बट तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में, इफ यू आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड, देन इट विल बी recorded on balance sheet liability side. Okay now next, तो जर्नल रिजर्व एक प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो हम प्रॉफिट में से निकाल के उसको जर्नल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिजर्व सरप्लस तुम लोग के लेवल पे दो ही आएगा, एक आएगा जर्नल रिजर्व और दूसरा आएगा रिजर्व एंड रिजर्व फंड। ओके
नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद आएगा बोरोइंग्स, बोरोड फंड्स। क्या आएगा? बोरोड फंड्स। ना बोरोड फंड्स, उसमें आएगा बैंक लोन। बोरो मीन्स हम लोग के पास पैसे कम है, अब हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। हम बैंक से जाएंगे, लोन लेंगे। या कोई 2-3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर्स पैसे वाला है, उसको बोला तू लोन दे दे, तूने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। या किसी और से लोन लिया है, वो कहाँ पे आएगा? अदर्स लोन में आएगा। तो बोरोड फंड्स, तो जो भी हमने लोन लिए हैं वो कहाँ पे आएगा? अंडर हेड बोरोड फंड्स। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, ये सब कहाँ पे आएगा? अंडर हेड बोरोड फंड्स। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज। Current liabilities are those liabilities which is repayable within short period, say for 1 year. Current liabilities एक ऐसी liabilities है जिसको 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है, इट्स कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ करंट में क्या है? क्रेडिटर्स, हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, देन यू हैव टू पे टू सप्लायर, सप्लायर मींस क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। बिल्स पेएबल, अब हम किससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाले ने बिल ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट किया और मैं बोला कि 3 months आफ्टर डेट आई विल पे सो एंड सो अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट टू यू। ओके, तो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने गुड्स तो परचेज कर लिया, पेमेंट मैंने नहीं किया है, मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो पेमेंट करना बाकी है, जो भी गुड्स मैंने परचेज किया है, इट इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। अगेन करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल, ओके, या एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तुम लोग एग्जाम बहुत बार आएगा, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। ओके, ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है, ड्यू बट नॉट पेड करंट लायबिलिटीज है, और ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है तो करंट असेट्स है। रिसीव्ड मींस पैसा लेना है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मींस ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, लेना है, तो मेरे लिए करंट असेट्स है। ड्यू बट नॉट पेड, पेड करना था लेकिन पेड नहीं किया है, तो करंट लायबिलिटीज है। ओके, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ओके, तो अगले साल की इनकम ये साल मिलेगी, तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। क्यों सर? हमने पैसा तो ले लिया लेकिन सर्विस नहीं दी, तो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो कहां पे आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा। ओके, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगेन किसी से एडवांस दिया है तो असेट है, और एडवांस लिया है तो लायबिलिटी है। हमने एडवांस लेके अगर गुड्स सप्लाई नहीं किया, हमने एडवांस लेके अगर गुड्स सप्लाई नहीं किया, पॉइंट क्लियर, तो हमको पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो माई करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। क्या है वो? इट इज एन शॉर्ट टर्म लोन है। ओके, तो ये भी क्या? बैंक ओवर मीन शॉर्ट टर्म लोन, तूने पढ़ा है राइट? तो इस पे भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इट्स माय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट लायबिलिटीज इतनी ही है, पॉइंटर। तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पॉइंट नंबर 1, every item of trial balance has one effect, that is either debit or credit। तो तुमको जो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, तो ट्रायल बैलेंस क्या आएगा? आइटम्स दिए रहेंगे, कैपिटल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेंट, सारे अकाउंट हेड दिए रहेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम, और नेक्स्ट कॉलम होगा क्रेडिट कॉलम। तो जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिया है, जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिया है, ओके, या ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिया है, उसका इफेक्ट, एक इफेक्ट आएगा। तो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। उसकी पोस्टिंग कोई भी एक ही जगह पे होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, every item of trial balance debit column
इज रिकॉर्डेड ऑन, ये तुम लोग को बहुत ध्यान देना है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं, ओके, उसका पहले एक इफेक्ट आएगा और रिकॉर्ड कहां पे होगा, तो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट कॉलम इज रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, partners current account or capital account debit side. Example drawings. Balance sheet asset side, balance sheet asset side, less from credit side of an account, let less from credit side of account. कोई भी अकाउंट के क्रेडिट साइड से माइनस करोगे इफेक्ट होगा डेबिट। तो याद रखो ट्रायल बैलेंस के जो भी डेबिट कॉलम में दिया होगा उसका डेबिट इफेक्ट ही आएगा, उसका डेबिट इफेक्ट ही आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, असेट साइड मींस एवरी असेट्स हैज डेबिट बैलेंस, तो तुमने असेट साइड पे लिया है तो इफेक्ट भी क्या होगा, डेबिट इफेक्ट ही होगा। लेस फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, ओके, कोई भी अकाउंट के क्रेडिट साइड माइनस करोगे, क्रेडिट साइड से माइनस करोगे तो डेबिट इफेक्ट और डेबिट साइड से माइनस करोगे तो क्रेडिट इफेक्ट। एग्जांपल सेल्स रिटर्न, सेल्स कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन हम सेल्स रिटर्न को डेबिट में नहीं लिखते, हम सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करते, और सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मींस यू माइनस सेल्स रिटर्न फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, मींस लेस फ्रॉम सेल्स, ओके। तो क्रेडिट साइड से माइनस करोगे इफेक्ट होगा डेबिट। और लेस फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी का कौन, जितनी भी लायबिलिटीज है उसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो तुम अगर लायबिलिटी साइड से माइनस करते हो तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा, डेबिट इफेक्ट होगा, ओके। ये जाता है, ये नॉर्मली आइटम तुमको कहां मिलेगा सर, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके। ये तुम लोग मोस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ ये एडजस्टमेंट में से आता है, ओके। बट सेल्स स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस में आता है, तो मैंने एग्जांपल लिख दिया है। तो तुमको याद रखना है जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिया है उसका इफेक्ट डेबिट में ही आएगा, ओके। उसका इफेक्ट डेबिट ही आएगा, उसका क्रेडिट इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, balance sheet asset side, less from credit side of account, credit side से minus करोगे effect debit, and less from liability side, liability कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड से माइनस करोगे इफेक्ट होगा डेबिट। अब एग्जैक्टली इसका रिवर्स केस, रिवर्स का एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम, तो जो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिया है उसका इफेक्ट क्रेडिट होगा, उसका डेबिट इफेक्ट नहीं होगा। सर कौन सा क्रेडिट इफेक्ट बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, every liability has credit balance, less from debit side of an account, that's the debit side of account. Example purchase, तो याद रखो परचेज डेबिट बैलेंस है, कहां पे आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आता है। बट परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। हम क्रेडिट में लिखते हैं क्या, नहीं, वी डोंट राइट ऑन क्रेडिट साइड, वी माइनस फ्रॉम परचेज, एंड परचेज कम्स वेयर, ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो व्हेन यू माइनस परचेज रिटर्न फ्रॉम परचेज इट मींस क्रेडिट इफेक्ट, कि डेबिट से माइनस किया तो इफेक्ट कौन सा होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, less from balance sheet asset side, less from balance sheet asset side, ओके। तो असेट साइड से माइनस करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा। क्यों सर, असेट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, तो असेट से माइनस करोगे इफेक्ट होगा उल्टा, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा क्रेडिट। तो लेस फ्रॉम असेट साइड means credit effect, okay। तो याद रखो every items of trial balance has one effect, either debit or credit। अगर डेबिट में दिया हुआ है उसका इफेक्ट डेबिट ही आएगा,
और क्रेडिट में दिया है उसका इफेक्ट में आएगा। तो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट कॉलम will be on trading account credit side, profit and loss account credit side, balance sheet, sorry, partners capital or current account debit side, balance sheet asset side, less from credit side of account or less from balance sheet liability side. Every item of trial balance credit column, कौन सा fed credit fed, trading account credit side, profit and loss account credit side, partners capital or current account credit side, balance sheet liability side, less from debit side or less from asset side. Okay, now after this we'll see some important items of trial balance जो स्टूडेंट्स को कभी कभी डिफिकल्ट पड़ता है. ओके, कभी कभी डिफिकल्ट पड़ता है. ओके, नाउ लेट अस लर्न सम इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके, नाउ इस आइटम्स दिए. नाउ फर्स्ट वेजेस. नाउ द पर्सन हु वर्क इन अ फैक्ट्री, okay, in that case they are paid wages. So in exam question, if in trial balance wages is given, then trading account debit side, wages and salary is given, means if more than 90% या 95% of expense is wages and 5 to 10% expense is salaries, at that time we use the heading wages and salaries. Okay, so if wages is given first, then again trading account debit side. Okay, तो मैक्सिमम एक्सपेंस वेजेस है और ओनली 2 to 5% सैलरीज है. तो वेजेस बहुत ज्यादा सैलरीज मामूली है, ना के बराबर है, तो वो वेजेस पकड़ेंगे उसको. तो क्या यूज करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज. कहाँ पे आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट है इन एग्जामिनेशन विल गिवन डायरेक्ट वेजेस, और यू कैन आल्सो बी गिवन द वर्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस. प्रोडक्टिव वेज मींस द वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस आर दोज वेजेस विदाउट व्हिच प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, जिसके बगैर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. से फॉर एग्जांपल टेलरिंग चार्जेस पेड फॉर स्टिचिंग द शर्ट. शर्ट या पैंट को स्टिच करने के लिए क्या पे करना पड़ेगा, टेलरिंग चार्जेस. वो डायरेक्ट वेज है, उसके बगैर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. फिर नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव और इनडायरेक्ट वेजेस. द वेजेस विच आर पेड टू वर्कर्स, okay, which cannot be identified in the product, okay, or without which product can be produced. उसके बगैर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. शर्ट प्रोड्यूस हो गया. शर्ट प्रोड्यूस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग को वॉश करना पड़ेगा या हमको उसको पैक करना पड़ेगा. लेकिन पैकिंग से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आयनिंग करना पड़ेगा. उसको प्रॉपर वे से आयन करके पैकिंग करके प्लास्टिक में डाल के, ओके, फिर हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे या फैक्ट्री में रखेंगे. तो जो आयनिंग चार्जेस है, जो पैकिंग चार्जेस है, वो सब क्या है, जो पैकिंग वाले डिपार्टमेंट होता है उनको सही पे करना पड़ेगा. पॉइंट क्लियर. तो वो भी क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस है. कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो कीप इन माइंड, डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और आई कैन से प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज, ओनली सैलरीज दिया है, तो salaries normally paid to office staff, profit and loss account debit side, profit and loss account debit side. Next उसके बाद है salaries and wages. Suppose in expense of rupees 1 lakh, 1 लाख के expense में more than 95% expense हमारा salaries है और 5% ही हमारा क्या आएगा, wages है. ओके, तो maximum expense कौन सा है, हमारा salaries है, और बहुत ही कम expense हमारा क्या आएगा, वेजेस है. ओके, मींस कंपनी सर्विस ओरिएंटेड है, तो इस केस में सर्विस ज्यादा होगा, वेजेस कम होगा. तो कहां पे आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एग्जाम क्वेश्चन में ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है, ये रॉयल्टी ऑन परचेज दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रॉयल्टी ऑन सेल्स दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कि परचेज प्रोडक्शन पे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रॉयल्टी ऑन सेल्स है तो वो सेलिंग एक्सपेंस हुआ, पीएल में आएगा. बट ओनली रॉयल्टी इज गिवन. अब मालूम नहीं है कि परचेज पे के सेल पे, इफ नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड रॉयल्टी ऑन परचेज. तो सर कहां पे आएगा, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड.
कैरेज इनवर्ड गुड्स लाने का खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड गुड्स बेचने का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऐसे नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ऐसा कभी नहीं होता, दोनों ही खर्चे हैं। एक गुड्स लाने का खर्चा है, ओके, उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउट गुड्स बेचने का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैरेज दिया है और कुछ भी नहीं दिया है तो कहां पे आएगा, ऑलवेज अज्यूम करेंगे वो गुड्स लाने खर्चा है, मींस वो कैरेज इनवर्ड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर ट्रायल बैलेंस में दिया है रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, आगे वर्ड कुछ फैक्ट्री नहीं दिया हुआ है, तो रेंट, इंश्योरेंस अगर दिया है तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ इट इज गिवन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, आगे वर्ड अगर फैक्ट्री दिया हुआ है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे वर्ड फैक्ट्री नहीं दिया है तो ये हुआ ऑफिस एक्सपेंस हुआ, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेंट, इंटरेस्ट, commission, discount. Now rent, interest, commission, discount, it can be expense also and it can be income also. वो expense भी हो सकता है, वो income भी हो सकता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा expense income है, if it is given on trial balance debit side तो profit and loss account debit, it is given on trial balance credit side then profit and loss account credit। सर कैसे, use debit the expense losses, क्रेडिट में दिया है तो एक्सपेंस है तो पेन डेबिट, क्रेडिट में दिया है तो इनकम है, ओके, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्री पेड इनकम। ना ये चारों जो आइटम है वो एडजस्टमेंट के आइटम है, ओके, ये जो चारों आइटम है वो एडजस्टमेंट के आइटम है, बट इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ना ये एडजस्टमेंट के आइटम होते, अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट आते, लेकिन कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कितना इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट आएगा। ओके, ऐसा दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन सैलरी पे करना बाकी है, इसका मतलब है एक इफेक्ट दे चुके, एक इफेक्ट देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, हमको सैलरी पे करना बाकी है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट आते, एड टू इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम कहां दिया है, तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो आउटस्टैंडिंग मींस पैसा कमा लिया है, मिला नहीं है, तो पैसा लेना है, हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, रिसीविंग करंट ईयर। अगर जिसे दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ओनली वन इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट इज प्री रिसीव्ड इनकम, मींस इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, रिसीविंग करंट ईयर, अगले साल की इनकम ये साल मिली है तो ये साल के लिए लायबिलिटी है, कहां पे आएगा सर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, ओके, नाउ 20, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न, ये कहां दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा, तो लेस फ्रॉम सेल्स। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, सेल्स always has credit balance and sales return always has debt balance। तो तुमको एग्जाम क्वेश्चन में रिटर्न्स दिया हुआ है, रिटर्न्स डेबिट में दिया है और क्रेडिट में दिया हुआ है, तो डेबिट में जो रिटर्न्स दिया है वो सेल्स रिटर्न है, लेस फ्रॉम सेल्स, और जो रिटर्न्स क्रेडिट में दिया हुआ है वो परचेज ने, लेस फ्रॉम परचेज। ओके, तो रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स डन, लेस फ्रॉम सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज डन, लेस फ्रॉम परचेज। ओके, और अगर कुछ बोला नहीं है, सिर्फ लिखा रिटर्न्स, तो ट्रायल बैलेंस डेबिट में दिया है तो लेस फ्रॉम सेल्स, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो लेस फ्रॉम परचेज। ओके, नेक्स्ट, अब ये चारों जो आइटम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुल, और भी इसके अंदर है। इसके बाद
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये एक्सपेंस है। नाउ ये होता क्या है? ओके, नाउ व्हेन यू आर वर्किंग इन द कंपनी, अगर तुम कोई कंपनी में काम करते हो, ओके, इन दैट केस एम्प्लॉयर विल डिडक्ट प्रोविडेंट फंड फ्रॉम योर सैलरी। तुम्हारे पगार में से क्या कटेगा? प्रोविडेंट फंड काटेगा। से फॉर एग्जाम्पल छाया की सैलरी महीने की 50,000 रुपए है, भगवान करे 50,000 मिले। छाया अच्छा पढ़ेगी, सीए करेगी, सीएस करेगी तो बन जाएगी ना। छाया की सैलरी महीने की 50,000 है, उसमें से कंपनी 5,000 काटती है प्रोविडेंट फंड। तो जितना प्रोविडेंट फंड कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगी, उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी उस एम्प्लॉय की करती है। तो 5,000 एम्प्लॉय ने दिया, ओके, और 5,000 एम्प्लॉयर ने दिया ना। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है? खर्चा है, मींस ओनर या बिजनेस के लिए खर्चा है। से फॉर छाया इज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ना रिलायंस ने डिडक्टेड 5,000 फ्रॉम हिज सैलरी, फ्रॉम हर सैलरी, उसके सैलरी में से काटा 5,000, वो तो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो कंपनी खर्चा नहीं है। जो जितना कंपनी काटेगी, जितना रिलायंस ने काटा, उतना ही छाया के लिए 5,000 कंपनी भी पे करेगी। तो 5,000, ओके, जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, एक्सपेंस फॉर द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो कंट्रीब्यूशन इज नॉर्मली एक्सपेंस है। जैसे तुमने देखा गणपति आता है तो घर पे लोग चंदा मांगने आते, चंदा मीन्स कंट्रीब्यूशन। गणपति के चंदा, दही अंडे के चंदा, नवरात्रि चंदा, चंदा मीन्स कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मीन्स व्हेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स for any amount for employee, it is a contribution, it is an expense for the employer, profit and loss account debit side. Next, provident fund liability. Now company maintains a provident fund account in name of each employee. हर एम्प्लॉय का एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करती है, और जो भी पैसा जमा होगा आफ्टर रिटायरमेंट, ओके, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर टर्मिनेशन, उसको निकाल दिया, या उसने कंपनी को छोड़ दी, या उसने और ज्वाइन कर लिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके मरने के बाद या उसके जॉब छोड़ने के बाद, उसको निकालने के बाद, ओके, या उसका रिटायर हो गया, उसके बाद जितना भी पैसा होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो पैसा कंपनी विल पे टू दैट एम्प्लॉय। तो वो कंपनी के क्या आएगा? लायबिलिटी। ओके, तो अमाउंट इन प्रोविडेंट फंड is maintained by employer for each employee. It is payable to employee on retirement or termination or after resignation. It is called as provident fund, and provident fund is an liability. कहाँ पे आएगा सर? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ जो पैसा एम्प्लॉय डेबिट किया है, एम्प्लॉय डेबिट किया एम्प्लॉय सैलरी में से, उतना ही कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर ने किया। तो 5,000 छाया ने कंट्रीब्यूट किया, 5,000 कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया, वो 10,000 है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो हर एक का पैसा लेके कंपनी उस पैसे को क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिले। ओके, तो जब कंपनी प्रोविडेंट फंड में से पैसा इन्वेस्ट करती है, जब कंपनी प्रोविडेंट फंड में से पैसा इन्वेस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज माय असेट, तो बैलेंस शीट असेट साइड। अब जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे इनकम आएगी ना। ये जो पैसा आएगा वो एम्प्लॉयर के लिए, ओनर के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम नहीं है, वो लायबिलिटी है। सर कैसी लायबिलिटी? जो भी पैसा आया है, किसका पैसा था? एम्प्लॉय का था। तो एम्प्लॉय का पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें जो इनकम आएगी वो भी किसकी? एम्प्लॉय की है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, उसके प्रोविडेंट फंड में वो अमाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? अमाउंट एम्प्लॉय को पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयर के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों? ये जो इनकम आएगा वो कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड में जाएगा, और प्रोविडेंट फंड क्या है? लायबिलिटी है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी लायबिलिटी है। तो क्या करना है सर? ऐड टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या करना है? ऐड करना है। ओके, पॉइंट क्लियर?
तो याद रखो, अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोविडेंट फंड contribution expense, profit and loss account debit side. Provident fund is a fund which has to be paid to the employee on retirement or resignation or termination. It is a liability for the employer. Balance sheet liability side. Amount invested by the businessman out of provident fund money is called as provident investment, is an investment, and balance sheet asset side. Any income received from provident fund investment is a liability for the owner because the funds are invested out of provident fund of employee. Okay, it is added to provident fund, and again balance sheet liability side. अगर provident fund में add कर दिया, fund कहाँ पे liability में वहाँ add कर दिया, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या चला गया, लाइबिलिटी चला गया. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इज माय एसेट एंड बिल्स पेएबल इज माय लायबिलिटी. बिल्स पेएबल इज माय एसेट्स एंड माय बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी. ओके, सिंपल है. रिसीव मींस पैसा लेने, एसेट है, और पेएबल मतलब लायबिलिटी है. नाउ नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट वाला, trade expenses. Trade expenses. Now trade expenses plus any of the expense is given in trial balance. तुमको ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है और ये चारों में से कोई भी एक एक्सपेंस दिया हुआ है. ओके, तो ट्रेड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस ऑल द फोर एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ऑफ एक्सपेंस दिया है. ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा. ऑफ एक्सपेंस कहाँ जाए, पीएल में जाएगा. ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस दिया है और सन्ड्री एक्सपेंस भी दिया हुआ है. ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, और सन्ड्री कहाँ पे, पीएल में जाएगा. सेम वे दोनों अदर जनरल एक्सपेंस भी दिया, ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएल में जाएगा. ट्रायल में ट्रेड एक्सपेंस दिया, मिसल एक्सपेंस दिया है, ये कहाँ पे ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएल में जाएगा. ओके, बट इफ इन ट्रायल बैलेंस ओनली ट्रेड एक्सपेंस गिवन, तो ट्रायल बैलेंस में ये सिर्फ यही एक्सपेंस दिए हुए, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑफ एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस नहीं दिया हुआ है. ओके, तो ट्रेड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो ट्रेड एक्सपेंस गिवन और ये चारों में से कोई भी एक्सपेंस दिया है. ओके, तो ट्रेड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये चारों के चारों एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और ट्रायल बैलेंस में ओनली ट्रेड एक्सपेंस गिवन, ये चारों में से एक भी एक्सपेंस नहीं दिया है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम देखना ट्रायल बैलेंस जब भी दिया हो तो तुमको याद करना है.